So the basic plan is to discuss problem solution essays today, but we'll be going through the topics, and only that essay will be going in the depth, which is the problem solution essay. And the topics we have selected or shortlisted for today are food, sports, health. Okay, food, sports, health. Out of these, whatever essay comes in the problem solution format, we'll discuss it in depth so that you know how to handle a problem solution essay. And for the benefit of the students who have joined day one today, their day one is today. There are three types of essays normally seen in the IELTS. Okay. Okay. So there are total three types of essays. First is the opinion, second is the discuss, and third is the problem solution. Okay. Now the opinion essays are further three types. One can be straightforward. Do you agree or disagree? Okay, so you can go, you can agree, you can disagree, you can go two ways by giving a concession. Okay, I'll discuss this some other day. Discuss essays in which some people say this, other people say that, discuss both views. That is a discuss essay. Third is the problem solution essay, and this type of essay we'll be focusing on today, this week. Okay, and the main topics from which I'll be selecting these essays are food, sports, health. Technology we did last week, technology also is there. Okay, that's it. Okay, so the first essay that comes our way is of the food essays, 331 essay from my academic book. The food travels thousands of miles from farm to consumer. फूड जो है हजारों मील फार्म से कंज्यूमर तक पहुंचने में हजारों मील की जर्नी जो है वो कवर करता है फूड. ठीक है. Some people think it would be better to our environment and economy if people ate only locally produced food. तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी environment के लिए भी better होगा और हमारी economy के लिए भी better होगा अगर लोग सिर्फ local food खाए. क्या आप सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, sorry, agree, disagree नहीं. To what extent do the advantages outweigh the disadvantages of locally produced food? अब ये ना ये बेसिकली ऊपर एक फैक्ट है कि आजकल जो फूड है वो थाउजेंड्स ऑफ माइल से आता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है फार्म से लेके. कुछ लोग कहते हैं कि ये बात गलत है और लोकल जो हमारी लोकल फूड खाएंगे तो उससे एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का भला होगा. क्या लोकल फूड खाने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज्यादा हैं? ठीक है. तो अब ये ऐसे हमने आज वैसे हैंडल नहीं करना, पर इस ऐसे में आप अगर इंट्रोडक्शन में लिखते हो कि एडवांटेजेस ज्यादा है इंपोर्टेड फूड के या लोकल फूड, देखो किसी चीज के भी एडवांटेज, अगर आप लोकल फूड के एडवांटेज ज्यादा लिख रहे हो तो इसका मतलब आप इंपोर्टेड फूड के डिसएडवांटेज ज्यादा लिख रहे हो. आप समझ रहे हो मेरी बात? हैंडल करो. So, अगर आप ऊपर लिखते हो कि इंपोर्टेड फूड के लोकली प्रोड्यूस फूड के एडवांटेज ज्यादा है तो एक तरह से आप कह रहे हो कि इंपोर्टेड फूड के डिसएडवांटेज ज्यादा है. ठीक है. और फिर आपने दोनों लिखने हैं, लोकल फूड और इंपोर्टेड फूड के क्या ज्यादा है उसके दो पैरे बनाना और क्या कम है उसका एक पैरा बनाना. तो ये क्लियर है ये ऐसे का. अभी हम इसको डेप्थ पे नहीं जाएंगे बिकॉज टुडे आवर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे. ओके, I'm just going to tell you all the essays that are there also. एक ये है, air transport is increasingly used to export types of fruits and vegetables to countries where they cannot be grown or out of season. तो air transport use किया जाता है fruits और vegetables को export करने के लिए उन countries में जहां ये grow नहीं किया जा सकता. अब ये वही है ना, food thousands of miles travel कर रहा है. Thousands of miles food कैसे travel कर सकता है? Mostly air transport से. थाउजेंड्स ऑफ माइल अगर फूड को भेजना है तो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स उसको एयर ट्रांसपोर्ट से ही भेजेंगे ना. तो ये वो है. कुछ लोग कहते हैं इट इज अ गुड थिंग बट अदर पीपल थिंक इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड. डिस्कस बोथ व्यूज. ये डिस्कस ऐसे है, पॉइंट सेम आएंगे वही कि जो फूड इतने दूर से पहुंचाया जाता है, मतलब इम्पोर्टेड फूड है, इम्पोर्ट करने के एक्सपोर्ट करने के फायदे जो है वो कुछ लोग कहते हैं ज्यादा फायदे हैं, कुछ कहते हैं नुकसान है. दोनों व्यूज डिस्कस करने और अपना ओपिनियन देना है. अगला इससे है, पीपल कैन ईट अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड ऑफ अदर रीजन्स. लोग बहुत वेराइटी ऑफ फूड बाकी रीजन्स का खा सकते हैं. एज ए रिजल्ट
they are eating a lot of foreign food instead of locally produced food. और इसलिए वो ज़्यादा foreign food खा रहे हैं instead of locally produced food. Do you think the advantages of eating foreign food are more than its harms? अब आपको ये भी समझ आ गया कि इस ऐसे में भी पॉइंट्स वही हैं, पर ये एडवांटेज ज्यादा है फॉरेन फूड के डिसएडवांटेज ज्यादा है, ये आपको लिखना है। और जो हमने पहला ऐसे मेन पढ़ा है उसमें यह है कि लोकली प्रोड्यूस के फायदे ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है। सो इन अ वे ऑल दीज थ्री एसेज are the same. Next essay is, in many countries, traditional foods are being replaced by international fast foods. This is having a negative effect on both families and societies. To what extent do you agree or disagree? First sentence is a fact. कि बहुत countries में जो traditional foods हैं, traditional खाने हैं, उनको replace किया जा रहा है by international fast food, और इसका negative effect हो रहा है families पे भी और societies पे भी. To what extent do you agree or disagree? क्या किस हद तक आप agree या disagree करते हो? ठीक है? तो ट्रेडिशनल फूड्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय इंटरनेशनल फास्ट फूड्स, इसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। आप इससे एग्री डिसएग्री करते हो? अगर आप एग्री करोगे आप बोलोगे हाँ नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, और अगर आप डिसएग्री करोगे तो आप बोलोगे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। समझ आ गया इससे? ठीक है, इंटरनेशनल फास्ट फूड्स का ऑन द ट्रेडिशनल फूड्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ज्यादा इंटरनेशनल फास्ट फूड्स खाए जा रहे हैं, इसका नेगेटिव इफेक्ट है। एग्री कर जाओ, अच्छा इससे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे इज, scientists say that junk food is harmful to people's health. Some say the way to ask people to eat less fast food is to educate them. अब पहली स्टेटमेंट जो है वो तो फैक्ट है। साइंटिस्ट कहते हैं जो जंक फूड है, जंक फूड कौन सा होता है पता है ना आपको? फास्ट फूड को ही जंक फूड कहते हैं, इट्स अ सिनोनिम फॉर दैट। ओके, साइंटिस्ट कहते हैं जो जंक फूड है वो जो है वो हार्मफुल है। कुछ लोग कहते हैं कि लोगों को ना एजुकेट करो ताकि इसको कम खाएं, और दूसरे लोग कहते हैं कि एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला, जिन्होंने खाना है उन्होंने खाना ही है। अब दोनों साइड डिस्कस करनी है और अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे इज, ये डिस्कस भी अभी आज हम नहीं फोकस कर रहे। दिस इज in many countries people buy imported food rather than food produced locally. तो बहुत सी कंट्रीज में पीपल इम्पोर्टेड फूड बाय करते हैं और लोकल फूड को बाय नहीं करते हैं। व्हाई डू पीपल डू दैट? हाउ कैन पीपल बी एनकरेज्ड टू ईट लोकली प्रोड्यूस्ड फूड? और ये एक तरह से प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है। ये समझ आया आपको? हमारा पहला जो फूड का ऐसे जो प्रॉब्लम सोल्यूशन फॉर्मेट में आया है, इट इज दिस। सो वी विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस। While doing this, you will also understand how you will handle any problem solution essay that comes your way in your exam. ठीक है, थोड़ा सा मुझे हिंट दे दो बोल के कि इतना समझ आ गया आपको जो मैंने अभी तक बताया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So बहुत सी कंट्रीज में people buy imported food rather than food produced locally. ऐसा क्यों करते हैं? Why? Reasons. अब देखो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में ना तीन चीजें पूछते हैं, तीन में से दो पूछते हैं नॉर्मली। सबसे पहला रीजंस पूछ सकते हैं, दूसरा इफेक्ट्स पूछ सकते हैं। तो इसको कॉजेज और रीजंस एक ही चीज होती है, कॉज इफेक्ट सोल्यूशन। तो तीन चीजों में से 95% ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में से इन तीन चीजों में से कोई दो चीजें पूछेंगे आपको। आइदर दे विल आस्क यू कॉजेज एंड सोल्यूशंस और इफेक्ट्स एंड सोल्यूशंस, और कॉजेज एंड इफेक्ट्स एंड कभी कभार कॉजेज इफेक्ट्स सोल्यूशंस। ये समझ आ गई आपको सारी बात अच्छे से? Tell me. Yes, ma'am. तो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में कॉजेस इफेक्ट्स सॉल्यूशंस में से कोई दो चीजें पूछते हैं। इस ऐसे में कौन सी दो चीजें पूछी है? कॉजेस इफेक्ट सॉल्यूशन में से कौन सी दो चीजें पूछी है इस ऐसे में? Reason solution. Causes and reasons is one and the same thing. तो reasons and solutions दो चीजें, इफेक्ट्स नहीं पूछे हैं। ठीक है, so now we'll go and read the whole essay and see how to handle a problem solution essay. इसकी इंट्रो आप कैसे बनाओगे, इसकी कंक्लूजन आप कैसे बनाओगे, इसके जो बॉडी पैराग्राफ्स है अंदर उनको स्टार्ट कैसे करोगे। दिस इज द स्केलेटन ऑफ द डिस्कस essay. मैंने डिस्कस essay के आगे मैंने हर तरह के essay के स्केलेटन्स की क्लास ली हुई है। इफ यू वांट दैट क्लास, वो जो क्लास है मेरी यूट्यूब पे मेरे फ्री उसमें पब्लिक में पड़ी है, आप उनको स्केलेटन भरोगे ना मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके तो स्केलेटन्स निकल आएंगे, हर तरह के ऐसे का स्केलेटन निकल आएगा। यू विल लर्न हाउ टू हैंडल ईच टाइप ऑफ ऐसे फ्रॉम दैट। पर आज हम वही चीज कर रहे हैं
वो वॉच करने से आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी. ओके, सो it is true that the demand for imported food has increased over the past couple of decades. In many countries, people buy imported food rather than food produced locally. Paraphrasing है, समझ आ गई? वही चीज बोली है ना इस सेंटेंस में कि demand for imported food has increased over the past couple of decades. Couple of decades means decade क्या होता है? 10 साल का पीरियड. Couple of decade means around past 20 years में imported food की demand बढ़ गई है. This essay intends to look into the reasons why people prefer imported over local produce. Produce noun है यहाँ पे. Produces जो भी खाने की चीज produce की जाती है, yield, and also suggest ways to motivate people to eat local produce. Okay? तो ये produce food, यहाँ पे मैंने produce word जो है वो as a verb नहीं use करा. Produce word as a verb भी use हो सकता है. Here I have used it as a noun. So I'm going to share my dictionary with you and tell you the difference in the pronunciation and the meaning of both these words. Meaning तो खैर वही है, but produce. Let me share my dictionary. Now this is the dictionary. Produce noun and produce verb. Produce noun है things that have been made. Things that have been made or grown, especially things connected with farming. Farm produce. इसके pronunciation का ध्यान देना. ये देखो ये जो pronunciation लिखी हुई. Produce. 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 Okay. Produce. 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 Okay. अब ये जो as a verb है, इसकी pronunciation. Produce. 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 Use पे ज़्यादा जोर है. Use. ये U के आगे दो बिंदियां दिख रही हैं. You produce. Produce. और उसकी pronunciation देखो. Produce. 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 यहाँ पे ज्यादा जोर है. Produce. ये देखो. Produce. Produce. यहाँ पे ज्यादा जोर है. Produce. Okay. So there's a difference. Produce. 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 यहाँ पे जोर नहीं है. वहाँ पे यहाँ पे ज्यादा जोर है. Okay. Produce. 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 Okay. So ये है और I've used it as a noun in my this thing essay. Okay. So first sentence is the first sentence in any problem solution essay will be the paraphrasing of what has been given, and the second sentence is such a sentence which will tell the examiner what you are going to write in the upcoming essay. ये बात clear होगी आपको problem solution essay की. सेकेंड सेंटेंस क्या होगा जो बताएगा एग्जामिनर को कि आपने उसको क्या बताना है आगे. ओके. अब मैंने क्या बताना है? Why people prefer imported food over local produce, ये बताना है ना आगे. Reasons देने हैं ना. And also solution suggest ways to motivate people to eat local produce. Suggest people to encourage to motivate people to eat local produce. Okay. समझ आ गया? इंट्रोडक्शन इजी है ना? बोलो easy लगी कि difficult लगी? Yes, ma'am. Very easy. Easy है ma'am. Let us go to the conclusion. Conclusion देखो. To sum up, there are many reasons why people opt for imported food, but some steps can be taken to reverse this trend. अब बताओ. Reverse का मतलब पता है? वापस लोकल पे चले जाएं. Reverse करना, उल्टाना. ठीक है? This trend को कुछ नया लिखा है मैंने conclusion में. अच्छा, अगर मैंने No, ma'am. अगर मैंने एक लाइन में या 10 सेकंड में आपको बताना है कि IELTS इससे क्या है, तो इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को बताना है कि उसको क्या बताना है, बॉडी में उसको बता देना है जो बताना है, और कंक्लूजन में उसको बताना है कि क्या बताया है. बस खत्म. IELTS इससे डन. ओके. तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन समझ आ गई प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we go to the body paragraphs. पहले बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट सेंटेंस देखो. देयर आर मेनी रीजंस. मैम इंट्रो में प्रोड्यूस के बाद फूड नहीं आएगा? अगर मैं प्रोड्यूस फूड लिखती तो प्रोड्यूस एज ए वर्ब यूज होता. जब एज ए नाउन यूज होता है उसके बाद कोई वर्ड नहीं आता. यही तो मैंने आपको पहले एक मिनट, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ.
देखो ये जो प्रोड्यूस है ना ये नाउन है। अब इसके सारे देखो, द शॉप सेल ओनली फ्रेश लोकल प्रोड्यूस, इसके बाद कोई वर्ब आया, कोई वर्ड आया और फूड आया? नहीं आया ना। अब जब मैंने इसको No. एज ए वर्ब यूज करा, प्रोड्यूस समथिंग इज टू ग्रो और मेक समथिंग, द रीजन प्रोड्यूसेस ओवर 50% वीट, तो प्रोड्यूस के बाद वीट आया, ठीक है। these shrubs produce bright red cherries, तो प्रोड्यूस के बाद कोई चीज आई जो वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। Yes, Our ma'am. cat produced kittens last week, हमारी कैट ने पिछले हफ्ते किटन्स प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तो प्रोड्यूस जब ठीक ऐसे है। वर्ब यूज होता है फिर उसके बाद फूड आता है। अब एज ए नाउन यूज करा है तो फिर तो प्रोड्यूस इज ए नाउन, उसके बाद थोड़ी कोई और चीज आएगी, नाउन के बाद एक और नाउन लगाओगे। No, ma'am. हाँ अब समझ आया, मैं प्रोड्यूस मैंने एज ए नाउन यूज करा है, तो मैं इसीलिए आपको अच्छे से समझाया है कि देखो ये एज ए नाउन यूज हुआ है, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस प्रो पे ज्यादा जोर है, और अगर आप एज ए वर्ब यूज करते हो तो बोलने में भी यहाँ पे ज्यादा जोर होता है, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, यहाँ पे अब क्या है, प्रोड्यूस, प्रो यहाँ पे ज्यादा जोर है, एज ए नाउन यूज करते हो बोलने में भी फर्क हो जाता है, ओके। Yes, There ma'am. are many reasons why people prefer imported food. ये मेरे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है। क्या ये सेंटेंस एग्जामिनर को बता रहा है कि इस पैरे में रीजंस आने वाले हैं क्यों लोग इंपोर्टेड फूड खाते हैं? Then this is a 7 band Yes, plus. ma'am. Then this is a 7 band plus topic sentence. Okay? आप अपनी तरफ से इससे बहुत ज्यादा अच्छी और फ्लावरी इंग्लिश का टॉप फर्स्ट सेंटेंस डालोगे पैरे का, और फिर आपके 6 या 6.5 आएंगे। ये वाले मेथड से एवरेज स्टूडेंट 7 या 7.5 बैंड ला रहा है, तो ये चीजें एक बार में समझ लो। आपको ज्यादा हाई फाई नहीं लिखना है, आपको फर्स्ट सेंटेंस वो बनाना है जो एग्जामिनर को बता दे कि इस पैरे में क्या आना है, और वो चीज मांगी हो टॉपिक में रीजंस मांगे हैं। फर्स्ट पैरे की फर्स्ट लाइन है, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पीपल प्रेफर इंपोर्टेड फूड, तो समझ आ गया, एग्जामिनर को बता रहा है ना रीजंस आने वाले हैं। Yes, हाँ, तो ये आप इतनी सिंपल और इतनी इजी लाइन भी 7 प्लस ले जाएगी आपको, और बहुत लेंथी सेंटेंस जो कि बीच में कहीं पे गुम हो गया, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, एग्जामिनर को दूसरी बार पढ़ना पड़ गया देखने के लिए आप कहना क्या चाहते हो, तो समझ लो आप 7 पे नहीं हो अगर दूसरी बार पढ़ना पड़ गया, समझ गए। तो इसलिए छोटे सेंटेंस लिखने आपके लिए बेटर रहेंगे, ओके। नेक्स्ट फिर पैरे में सारे रीजंस देंगे। मैंने रीजंस बड़े अच्छे चुने हैं बताने के लिए आपको, और साथ में आपकी जीके भी बढ़ रही है। सबसे पहला रीजन है कि जब हम फूड को इंपोर्ट करते हैं तो जो इंपोर्ट करते हैं तो फूड की क्वालिटी चेक करके इंपोर्ट करते हैं। हमने अपनी कंट्री में कुछ बेचना है तो इंडिया की सरकार जो बाहर से कोई चीज आएगी अच्छे से चेक करेगी ना, बाहर से आ रही भी देख लो अच्छी भी है, अपनी कंट्री में लाने लायक है कि नहीं है, और जो कंट्री भेज रही है वो भी उस पर क्वालिटी चेक करेगी ना। हमारी कंट्री की प्रेजुडिस का सवाल है, हमारी कंट्री की वो इज्जत का सवाल है कि अगर हमने खराब चीज भेजी तो लोग कहेंगे यहाँ का माल बड़ा खराब है, समझ गए। तो वो अपनी जो फूड है उसको अच्छे से चेक करेंगे ना, क्वालिटी चेक अच्छी होगी ना इंपोर्टेड फूड की, भेजने वाली कंट्री भी करेगी, लेने वाली कंट्री भी करेगी, समझ आ गया पहला पॉइंट। और साथ में मैंने कंपेयर कर दिया लोकल फूड पे, रेगुलेशंस ऑन लोकल फूड आर लेस स्ट्रिक्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल इज इग्नोर्ड। अब लोकल फूड की रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल भी इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, इन सम केसेस, सेकेंडली इन सम केसेस ओवरसीज फूड इंपोर्ट्स आर चीपर एज कंपेयर टू लोकल फूड ड्यू टू फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशंस और फॉरेन गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सब्सिडीज। अब बाहर की गवर्नमेंट अपनी कंट्री के फार्मर्स को सब्सिडीज दे रही है, सपोर्ट दे रही है, वो चीजें सस्ती प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे ग्रोइंग कंडीशंस फेवरेबल है, तो वहां से अगर वो जो चीज है वो बेचते हैं, बहुत सारी भेजते हैं और कम रेट पे भेजते हैं कई बार, और यहाँ पे वही चीज हमारी लोकल जो है वो महंगी है, तो व्हाट विल हैपन, पीपल विल ईट द सस्ती चीज जो बाहर से आई है। समझ गए बात को, दोनों पॉइंट समझ आ गए व्हाई फॉरेन इंपोर्टेड फूड इज प्रेफर्ड। सबसे पहला तो क्वालिटी ज्यादा बेटर है क्योंकि क्वालिटी चेक्स होते हैं, बाय कंट्रास्ट लोकल फूड पे क्वालिटी चेक्स आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट।
Secondly, sometimes, in some cases, overseas food imports are cheaper as compared to local food because why? उसके reasons मैंने दे दिए. वहाँ favorable growing conditions है and secondly वहाँ पे क्या है? वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है अपने फार्मर्स को और सब्सिडीज वगैरह दे रही है, फार्मर्स को सस्ती पड़ रही है प्रोड्यूस करनी. इन एडिशन, नाउ व्हाट डज दिस इन एडिशन मीन? अगले पैरे की बिगिनिंग में मैंने इन एडिशन दिया. व्हाट डज इट मीन हियर? Another point. Another point, but it also means that I am continuing with the reasons yet. समझ आ गया? हाँ, ठीक है. In addition, globalization has created an awareness about exotic foods. Exotic होते foreign foods. अब globalization का समय है, exotic foods की awareness है. लोगों को पता है कि बाहर ये वाला फ्रूट भी होता है यार, देखें कैसे खाने को, क्या है ये चीज, क्या है. कीवी थी थोड़ी यहाँ पे 20 साल पहले. अब मतलब अब बहुत हर स्टॉल पे कीवी आपको मिल जाती है, बिक रही है ना खूब कीवी. ठीक है. अब पहले न्यूजीलैंड में ही तक ही सीमित थी, अब लोगों को पता है. एवोकाडो मिलता है यहाँ पे. हमारे छोटा सा टाउन है फगवाड़ा, यहाँ पे सब्जी वाले के पास मैंने पूछा ये क्या है भैया, कहता है एवोकाडो. आपको पता नहीं एवोकाडो होता है? मैंने कहा हाँ पता तो है, पर ये नहीं पता था यहाँ मिल जाता है. ठीक है. तो वो मेक्सिको का है, वो भी यहाँ मिल रहा है. ठीक है. और ये डिमांड है तो लोग खरीदते हैं. एक पीस 150 का, कहता ले जाओ. मैंने कहा चल फिर कभी ले जाएंगे जब सोचेंगे कि खाना है. ठीक है. तो एवोकाडो बिकॉज मैंने तो खाया हुआ है बाहर, उसकी मेरी बेटी उसकी चटनी बनाती है, वो बड़ी अच्छी बनती है. वैसे तो ब्लैंड सा फ्रूट है, इट्स नॉट वेरी टेस्टी, बट in some things it can be put and add to the taste. So in addition, globalization has created an awareness about exotic foods and thus created a demand that did not exist a few decades ago. For example, Italian pizza lovers prefer to buy imported cheese rather than local varieties. Cheeses की जरूरत नहीं है, cheese ही कर देते हैं fruit. Local cheese rather than local varieties to get the authentic taste. अब क्या है, जो Italian pizza में जो cheese पड़ता है वो जो यहाँ आम चीज मिलता है वैसा नहीं है, वो फर्क है. उसको पिज्जा चीज कहते हैं. वो वहां वाला फिर लोकल वाला नहीं यूज करते, और वहां से जो इंपोर्ट किया जाता है वो चीज यूज करते हैं. इंपोर्टिंग फूड ऑल्सो गिव्स पीपल मोर चॉइसेस एज ऑफ सीजनल फ्रूट्स आर ऑल्सो अवेलेबल. अब इंपोर्ट करने से चॉइसेस बढ़ जाती हैं, ऑफ सीजनल फ्रूट्स भी अवेलेबल है. अब आपने कभी मैंगो, हमने कभी छोटे होते मैंगो सर्दियों में नहीं खाया था, पर अब पिछले 10-15 साल से सर्दियों में भी मैंगो खाने को मिल जाता है. ठीक है. क्योंकि किसी और हिस्से में दुनिया के उस टाइम गर्मियां चल रही हैं, वहां से इंपोर्ट हो रहा है. समझ आ गई बात आपको? Finally, consumption of foreign foods has become a status symbol and people want to show off their wealth. तो ठीक है ना. अब किसी के घर जाओ, हम गए किसी के घर, कहते ये ना ये सेब, ये टर्की से आया सेब, टर्की का सेब है. तो ठीक है, अब नहीं बताते तो हमें पता नहीं चलना था. ये जरूर पता चलना था कि कुछ स्पेशल है, बट मतलब दैट वाज जस्ट टू एक तरह से बताने के लिए कि टर्की का मंगाया, खा के देख. ठीक है. एंड ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो होगा ही. ठीक है. ये हो गई बात स्टेटस सिंबल. अब पॉइंट्स को सम अप करो ऑन योर फिंगर टिप्स. क्वालिटी चेक. ठीक है. समटाइम्स चीपर. Third, because of globalization, people want to taste exotic foods, foreign ke foods, and choices. And finally, status symbol. Status. Status symbol. Many steps could be taken to encourage people to eat local produce. यहाँ पे भी produce as a noun use हुआ है. Many steps could be taken to encourage people to eat local produce. अब ये लाइन पढ़ के पता चल रहा है कि ये solutions है इस बारे में. पता चल रहा है ना. तो अब ये it's a good topic sentence. Topic sentence होता है the first sentence of any paragraph, which generally is the theme of the paragraph. Okay? समझ आ गया? तो one step is to make people aware about the benefits of local food. तो पहला solution क्या मैंने बताया, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है कि लोकल फूड खाओ. पहला स्टेप है कि लोगों को लोकल फूड के बारे में, उसके जो फायदे हैं उसका अवेयर करो. अब क्या फायदे हैं ये बताना है लोगों को. लोकल फूड फ्रेश होता है,
और ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि इसको जस्ट शॉर्टली आफ्टर राइपनिंग, जैसे ही पकता है उसी टाइम इसको शॉर्टली आफ्टर इसको प्लग करके मंडी में ले आते हैं। अब आप सब्जी खरीदते हो, जो सब्जी उसी टाइम, जो मूली उसी टाइम आपने निकाली है खेत में से और खाई है, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है, और जो आप बाजार से लाते हो 1-2 दिन पुरानी, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। ये तो आपको पता है ना। तो ये लोगों को बताना है कि वो फ्रेश होती है, मोर न्यूट्रिशियस होती है। जो हजारों मील दूर से फूड आएगा वो ना तो फ्रेश होएगा ना, क्योंकि स्टोरेज में उसके न्यूट्रिशन थोड़ी सी खत्म हो जाती है। समझ आ गया पॉइंट? लोगों को ये बताना है, अवेयर करना है लोकल फूड के ये फायदे हैं, ठीक है। सेकेंड सोल्यूशन है दैट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो चेक द लोकल प्रोड्यूस फॉर क्वालिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट को लोकल फूड प्रोड्यूस को भी चेक करना है फॉर क्वालिटी टाइम टू टाइम। इफ पीपल गेट गुड क्वालिटी लोकल फूड्स, दे विल बी लेस लाइकली टू ऑप्ट फॉर फॉरेन फूड। अगर लोगों को गुड क्वालिटी लोकल फूड्स मिलेंगे तो फॉरेन फूड नहीं खाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, the government should subsidize the locally produced foods or impose taxes on imported foods to make local options financially more attractive. अब solutions को point करो अपने fingers पे। सबसे पहला solution क्या है? Aware people about the benefits of local food. Number 2, government should check the quality of local food from time to time. Number 3, गवर्नमेंट को लोकल प्रोड्यूस पे सब्सिडीज देनी चाहिए ताकि लोगों को सस्ती, फाइनेंशियली ज्यादा सस्ती चीजें मिल जाएंगी तो दे विल गो मोर फॉर दोस, और इंपोर्टेड फूड पे टैक्स बढ़ा देना चाहिए। समझ आ गए सॉल्यूशंस? यस मैम। अब आपको मैं ये बात, एक और बात बता रही हूँ। जैसे अभी आपने पढ़ा है ना, अब आप ऐसे एक बार पढ़ते हो, आप यंग हो, आपको ये बातें आप अच्छे से ऐसे पढ़ो, अपने नोट्स बना लो पॉइंट्स के, तो आपको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ पॉइंट्स वाला पेज लास्ट डे जो है अपना करो और आपका इससे हो जाता है। ये बात समझ आ रही है ना आपको? तो अच्छे से ऐसे रीड करो उसके एसेस अगर आपको देना। अब बच्चे कहते हैं पॉइंट्स नहीं सूझते, पॉइंट्स अपने आप नहीं सूझते हैं, पॉइंट्स के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और हाउ टू हैंडल ए प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे क्लियर हुआ इस ऐसे से? Yes, ma'am. Okay. Next essay is, some people support the development of agriculture like factory farming and scientific creations of fruits and vegetables, while others oppose. Discuss both views and give your opinion. अब ये discuss essay है तो मैं इसको आज discuss नहीं करूँगी, पर इसमें क्या है, फैक्ट्री फार्मिंग और साइंटिफिक क्रिएशंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कई लोग सपोर्ट करते हैं। साइंटिफिक क्रिएशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, और जो फैक्ट्री फार्मिंग है, फैक्ट्री फार्मिंग इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू एनिमल्स। मैं ऐसे के टॉपिक्स आज आपको समझा रही हूँ। टॉपिक्स, ये टॉपिक समझने बहुत जरूरी हैं, बिकॉज टॉपिक्स समझोगे तो एग्जाम में गलतियां नहीं करोगे। ये फैक्ट्री फार्मिंग का जो मतलब है, अगर मैं इसको मैंने ये ढूंढा नहीं होता तो मेरे को ये लग रहा था कि फैक्ट्री की तरह फार्मिंग करना, जैसे थोड़ी सी एरिया में बहुत ज्यादा फार्मिंग करनी, उसको फैक्ट्री फार्मिंग कहते हैं। फैक्ट्री फार्मिंग, factory farming word is related to animals, not plants. A method of farming in which animals are kept inside in small spaces and are fed special food so that a large amount of milk meat is produced as quickly and cheaply as possible. ठीक है, ये है फैक्ट्री फार्मिंग। और एक होती है बैटरी फार्मिंग, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एनिमल्स ऑन ए बैटरी फार्म। और जो बैटरी फार्म होता है, ये बैटरी फार्म होता है, फार्म वेयर लार्ज नंबर्स ऑफ चिकन्स और अदर एनिमल्स आर केप्ट इन वेरी स्मॉल केजेस और क्राउडेड कंडीशंस, उसको बैटरी फार्म कहते हैं, ठीक है। और फैक्ट्री फार्म में थोड़ा स्मॉल स्पेसेस में है, पर उतनी टाइट स्पेसेस में नहीं है। स्पेशल फूड खिलाया जाता है, उनको मोटा करा जाता है ताकि ज्यादा उनमें मांस वगैरह चढ़े और ज्यादा बिके और ज्यादा पैसे कमाए जा सके। क्लियर हो गया ये फैक्ट्री फार्मिंग? फैक्ट्री फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जो साइंटिफिक क्रिएशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो ये आपको, आई होप नाउ इट्स क्लियर। मैं सिर्फ टॉपिक समझाना था, बेसिकली टॉपिक क्लियर हो गया। मैं वैसे ये फाइल आपसे शेयर करने वाली हूँ आज, जो मैं ऐसे टच कर रही हूँ, पर डेप्थ में हम प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में ही जाएंगे। ओके, it is known to all that the technological and scientific advances have made great changes to the range and quality of our food.
ये लाइंस मत ड्रॉ करो प्लीज। रेंज एंड क्वालिटी ऑफ फूड में साइंटिफिक ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ने रेंज एंड क्वालिटी ऑफ फूड को इम्प्रूव करा, ये भी जीएम फूड्स पे ऐसे है। कुछ लोग कहते हैं ये अच्छी बात है, कुछ कहते हैं हार्मफुल है। डिस्कस बोथ व्यूज। जीएम फूड्स का टॉपिक है, ये भी जीएम फूड्स का टॉपिक है। एंड 37th essay is government needs, yes, okay, government needs to spend money to encourage the development of art of sports and art for school students. अब sports कैसे आ गए? गवर्नमेंट को encourage करना है कि बच्चों के लिए sports and arts को develop करें, rather than to support professional sports and arts, even rather than professional sports and arts को support करना। Do you agree or disagree? क्या आप agree करते हो कि disagree करते हो? आपको ये लिखना है कि अगर आप एग्री करते हो तो आपने कहना है कि स्कूलों में स्पोर्ट्स एंड आर्ट को एनकरेज करो, और जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स है उसको उस पे सरकार पैसे नहीं खर्चे। अगर आप एग्री करोगे तो आप ये लिखोगे, अगर आप डिसएग्री करोगे तो लिखोगे कि स्कूल्स पे ज्यादा नहीं खर्चे पर प्रोफेशनल पे जरूर खर्चे, तो फिर वो डिसएग्री बनेगा। So this is the essay. We are not discussing it in depth today. It's an agree disagree essay, but I'll be sharing the file. Okay. Some people believe that to improve public health, government should increase the number of sports facilities. Others believe that it has little effect and need other measures to improve it. Discuss both views and give your opinion. कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, बाकी कहते हैं कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला और कुछ करना पड़ेगा लोगों की सेहत इम्प्रूव करने के लिए। दोनों व्यूज आपको डिस्कस करने हैं, तो ये डिस्कस ऐसे है। We'll leave it for some other day. Let us see this. Some people think that the government should financially support national teams and individual men and women who represent their country. However, others argue that they should be funded by NGOs, non-government sources. Discuss both views and give your opinion. ये भी discuss ऐसे है, so we'll be skipping it for today. Skipping का क्या मतलब है? What is the meaning of skip? मम्मी से छोड़ के आज छोड़ना। तो ऐसे ना एक डॉक्टर के पास एक लेडी गई, कहती है मेरे हस्बैंड बहुत मोटे हैं, कोई दवाई दो उनको पतला करने के लिए। तो वो दवाई देता है, वो कहता है ये एक दिन 4 गोलियां देनी है, एक दिन स्किप करना है, फिर एक दिन 4 गोलियां देनी है, फिर एक दिन स्किप करना है। तो 3-4 महीने बाद वो डॉक्टर मिला उस लेडी को, कहता है आपके हस्बैंड पतले हुए क्या? नहीं। कहती वो तो पूरे हो गए। कहता क्या हुआ? कहती वो दवाई तो ठीक थी पर स्किपिंग नहीं हो पाई, तो रस्सा खुदवाती रही पूरा दिन। वो कहती स्किप, आपने बोला था ना एक दिन 4 गोलियां खानी, अगले दिन स्किप करना है, तो वो स्किप कराती रही उसको बेचारा 24 घंटे। तो एनीवेज दैट इज अ जोक। नाउ दिस इज और बोलना पड़ गया कि जोक है, तो इसका मतलब जोक भी अच्छा नहीं है। एनीवेज म्यूट पे हंस नहीं सकते इसलिए। Okay. And nowadays sport is becoming a business and more professionals and big companies are getting involved in sporting events. तो ये अभी recently आया है, इससे ये ऐसे important है from the guesswork point of view also. तो बहुत सी प्राइवेट कंपनीज हैं, बिग कंपनीज है, वो स्पोर्टिंग इवेंट्स आजकल आपको पता है ना, ये जो T20 है किसी फिल्म एक्टर ने खरीद लिया या किसी कंपनी ने खरीद लिया, बिजनेस हाउस ने खरीद लिया, तो ये ऐसे ये वो है कि ये बड़ी कंपनीज हैं, ये स्पोर्टिंग इवेंट्स में प्रोफेशनल्स हैं, ये स्पोर्टिंग इवेंट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ठीक है, अब हमने ये ऐसे भी आज नहीं करना है बिकॉज ये प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, Some people think sports and games are important for society. कुछ लोग कहते हैं sports and games important है, बाकी कहते हैं they should be taken as leisure activities. Discuss both views, give your opinion. We'll be skipping it today. Okay. Next is holding international games such as Olympic Games is an exciting event. इंटरनेशनल गेम्स को होस्ट करना या होल्ड करना एक्साइटिंग इवेंट है। कुछ लोग कहते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है, बाकी कहते हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। डिस्कस बोथ साइड्स। इस ऐसे में आपको सिर्फ इतनी बात बता रही हूँ, आप पढ़ोगे अपने आप, पर इस ऐसे में जो मेन गलती बच्चे कर जाते हैं वो है कि गेम्स के फायदे लिखने शुरू कर देते हैं। ये गेम्स के फायदे नुकसान कैसे नहीं है। दिस इज एन एसे ऑन होस्टिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स, उसके फायदे नुकसान होस्ट करने के। समझ आया? अब ध्यान से पढ़ना है इसको जब पढ़ोगे।
गॉट इट? बिकॉज ये गलती जो है, जो गेम्स के फायदे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मेरे ये टेस्ट ये ऐसे मैं कितने सालों से बच्चों को बीच बीच में लिखने को दे रही हूँ, तो इवन द वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स समटाइम्स go astray, digress from the main topic, start writing about the benefits of sports and games, which is totally not asked for in this essay. Okay. Okay. Next essay is health experts believe that walking is a good exercise for health. However, people are walking less nowadays. Why is this happening? How can people be encouraged to walk more? अब हेल्थ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि वॉकिंग जो है ना वो अच्छी एक्सरसाइज है, पर लोग आजकल कम चल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है एंड हाउ कैन पीपल बी एनकरेज टू वॉक मोर, और कैसे लोगों को एनकरेज किया जा सकता है कि चलो भाई ज्यादा चलो। ओके, अब ये 4 पैरा ऐसे बनाया है, लेट अस सी how to handle. This is a problem solution essay. We'll be handling it in depth. Okay, आपका problem solution essay की handling after today's class you should know. Okay, कि problem solution essay आ जाए तो आपके मन के अंदर deep inside your heart you should have that feeling, now we can handle it, right? That is the aim of today's class, problem solution essay done. Yes, इस हफ्ते we'll be focusing on that. ठीक है, नाउ इसमें ऐसे का टॉपिक है हेल्थ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो बिलीव करते हैं वॉकिंग अच्छी एक्सरसाइज है, पर लोग चल नहीं रहे। ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे लोगों को इनकरेज कर सकते हैं कि ज्यादा चलो भाई। अब मेरे को बताओ इसमें 3 चीजों में से कौन सी 2 चीजें मांगी गई हैं इस हिस्से में? मैम रीजंस एंड selection. वेरी गुड। ओके, there are many reasons. Okay, regular physical exercise is a vital part of maintaining our health and well-being, yet people are walking less these days. Regular physical exercise vital part है हमारी health और well-being को maintain करने का, yet people are walking less these days. ये एक sentence paraphrasing का सही है? कुछ भी लिख सकते हो. You can say Yes, many doctors suggest that walking is a wonderful exercise for maintaining good health. Okay. But comma डाल दो, but people do not walk as much as they used to. अब less nowadays walk कर रहे हैं, जो पहले ज्यादा कर रहे थे, ऐसे भी लिख सकते हो sentence. In this essay, there are several reasons why people are walking less, but this situation can be remedied through effective measures. ये sentence बता रहा है कि मैं इसमें reasons and solutions देने वाली हूँ. यस मैम। So this is a very good thesis statement. Thesis statement क्या है जो एग्जामिनर को बताएगी ऐसे में क्या आने वाला है? ये बता रही है कि ऐसे में reasons and solutions आने वाले हैं. तो this is a good thesis statement. This is a 7 band plus thesis statement. okay. ठीक है, अब एक पैरा मैंने बना दिया reasons का, एक पैरा solutions का, चार पैरे का टोटल essay है, and this 4 पैरा essay is as good as a 5 पैरा essay. ठीक है, समझ आ गई बात? आप प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में 2 ऐसे में प्रॉब्लम्स, एक में सॉल्यूशंस, एक में प्रॉब्लम 2 में सॉल्यूशंस, एक में प्रॉब्लम 1 में सॉल्यूशंस, कोई भी फॉर्मेट से बना सकते हो. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रेगुलर ये हो गया था. ओके, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पीपल हैव स्टार्टेड वॉकिंग लेस. इज दिस स्टेटमेंट टेलिंग द एग्जामिनर द रीजंस व्हाई पीपल डोंट वॉक nowadays? Then it is a good topic sentence. 7 band or 7 band plus. ठीक है? The first reason is that everything is spread out and people live far from the places they need to go, like the offices, grocery stores, their children's schools, etc. अब सबसे पहला रीजन है कि सब कुछ बहुत फैल गया है और लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है दफ्तर जाने के लिए, ग्रोसरी स्टोर शॉपिंग करनी है, बच्चों के स्कूल जाना है. ड्राइविंग टू दीज प्लेसेस इज मोर कन्वीनियंट. ऐसी जगहों पे ड्राइव करना ज्यादा कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है, एंड समटाइम्स द ओनली ऑप्शन. तो फिर इसलिए चलते नहीं है. इन एडिशन, इवन इफ द प्लेस इज नियर बाय, पीपल प्रेफर ड्राइविंग टू वॉकिंग as they are busy with their demanding careers. सबसे पहला रीजन है चीजें स्प्रेड आउट है, उनको दूर जाना पड़ता है. दूसरा रीजन है कि उनका करियर इतना डिमांडिंग है, उनको इतना काम करना है कि उनको बस टाइम बचाना है हर हालत में. तो इवन नियर बाय जगह पे भी फटाफट गाड़ी निकालते हैं या स्कूटर निकालते हैं. दे डोंट वॉक.
ओके। सेकेंडली, ये वही एक ही पॉइंट है मतलब जो जिसपे मैंने इसको स्प्रेड करा कि टाइम बचता है और तो उसी के साथ है। सेकेंडली, दूसरा पॉइंट है, टुडे कार्स आर ए स्टेटस सिंबल एंड ड्राइविंग एक्सपेंसिव कार्स इज अ वे फॉर देम टू शो ऑफ देयर पोजीशन इन सोसाइटी। तो सेकंड स्टेटस सिंबल है, कार निकालेंगे तो अपना स्टेटस शो करेंगे ना सोसाइटी में। Finally, many people walk less because it is not safe, as modern cities are not pedestrian friendly. In other words, because of lack of pavements and footpaths in cities, people have to walk on roads along with vehicles, which is very dangerous. तो ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए, why people are walking less. सबसे पहला पॉइंट है, things are spread out. They have to, because driving is the only option. ऑफिस दूर है, ग्रोसरी स्टोर दूर है, बच्चों के स्कूल दूर है, पैदल नहीं जा सकते हैं। सेकंड, अगर जगह पास भी है तो भी उनको ये मतलब अगर जगह पास भी है तो भी उनको also even if the place is nearby, people prefer driving. Secondly, cars are a status symbol and thirdly, safety. तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब ये ऐसे 3 पॉइंट लिख लो एक पैरे के साथ में, दूसरी बार आपको पूरा पैरा पढ़ना भी नहीं है, आपको इन्हीं 3 पॉइंट्स पे पैरा बनाना है। समझ आ गया? पैराग्राफ, रीजंस व्हाई पीपल आर वॉकिंग लेस। ठीक है। There are certain steps that can be taken to encourage people to walk more. ये पढ़ के पता चल रहा है, इसमें solutions आएंगे। Yes, ma'am. To begin with, government should redesign the cities and have pavements on sides of the road for pedestrians to make walking safer. Pedestrian कौन होते हैं? पैदल चलने वालों को pedestrians कहते हैं। अब आप अपनी ना वोकैबुलरी का पेज सेट कर लेना, उसके ऊपर लिखना फूड। आज हमने फूड ऐसे करे हैं, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ, फूड स्पोर्ट्स एंड हेल्थ वोकैबुलरी। जो बड़े वर्ड्स आपने सीखे हैं वो डाल लो और जो पिक एंड चूज कर लेना जब आप ऐसे लिखोगे। ठीक है। Restricting traffic speeds in city centers and at major intersections would also make people feel safe. तो एक तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए साइडों में पैदल चलने के लिए पेवमेंट्स बनानी चाहिए। ठीक है। सेकंड है कि वहां पे मेजर इंटरसेक्शन, जहां पे भी सड़कों के बीच में इंटरसेक्शन आती है ऐसे, वहां पे स्पीड जो है वो ट्रैफिक स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। स्टॉप सिंबल लगा होता है, आपको पता है बाहर, यहाँ पे तो इतनी कॉमन नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं ना, है ऐसा कुछ देखने को, छोटे टाउन्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉप साइन लगा है, अब ना 4 ऐसे 2 सड़कें ऐसे क्रॉस कर रही हैं, मतलब ऐसे, और इधर भी खाली जगह, इधर भी खाली, इधर भी खाली, इधर भी खाली, और वहां स्टॉप लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन है तो स्टॉप लिखा हुआ है। और मेरी बेटी ना वहां स्टॉप करती है कार और फिर आगे जाती है। मैं उसको कहती हूँ चारों तरफ दिख रहा है, कुछ नहीं है दूर दूर तक, तूने क्यों स्टॉप करना है? कहती है हम यहाँ जहाँ पे सब स्टॉप करते हैं, और हमने सच में देखा सब लोग स्टॉप करते हैं, चाहे कुछ भी ना हो, दूर दूर तक आधे किलोमीटर तक तो नजर जा ही रही है, कुछ भी नहीं है तो भी स्टॉप करते हैं लोग। ठीक है। और यहाँ तो बिल्कुल साथ साथ ही आ रहे हैं, आगे पीछे सब घुसेड़ते हैं कि पहले निकलना है, चलो इंटरसेक्शन है तो क्या हुआ, चलो। तो लाइक दैट, यू नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इंटरसेक्शंस पे ट्रैफिक स्पीड्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, एक और स्टेप है। ऑल्सो more parks and playgrounds need to be built inside city limits so people can walk as a leisure activity. अगर city limit के अंदर ज्यादा parks हैं तो लोग वहां निकलेंगे सैर करने के लिए। हमारे घर के पास जितने parks हैं वहां शाम को सुबह लोग होते हैं सैर करने वाले। In addition, people should be educated about the potential health benefits of regular walking through health apps. अब health apps आजकल तो बहुत आ गई हैं। आप अपने wrist पे जो आपकी फिटबिट है या जो भी घड़ी है, जैसे मेरे पास भी है, इनमें पूरे जो आप स्टेप्स कवर कर रहे हो वो आ जाते हैं, और सब चीज आ जाती है। माई वॉच इवन हैज द ECG एंड द हार्ट बीट मैम, ऑक्सीमीटर भी है, हार्ट बीट भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। ओके। So in addition, people should be educated about the potential health benefits of regular walking through health apps. वैसे ना अगर ये नहीं भी है तो अब आजकल फोन्स में भी एप्स है, फोन आपके हाथ में पकड़ा है वो भी बता देगा कितने स्टेप्स चले आपने। ठीक है। These apps can also help staying healthy. Last but not least, businesses can incorporate a walking culture at work by having more walk and talk meetings. Walk and talk meetings का मतलब समझ आ गया? Yes, ma'am.
अब मीटिंग करनी है, बॉस ने 4 बंदे हैं मीटिंग में, चारों के साथ सैर नहीं कर सकता, पार्क में 4 सैर करते करते अपनी मीटिंग कर लो, बातें कर लो, वैसे भी तो बातें करते हैं, गॉसिपिंग। व्हाट इज गॉसिपिंग? बातें करना। नो, गॉसिपिंग इज नॉट बातें करना। चुगली करना, डिस्कशन करना। चुगलिया इज गॉसिप। ओके, बातें करना इज नॉट गॉसिपिंग। बच्चे बोलते हैं आई लाइक टू गॉसिप विद माय फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ चुगलिया करनी पसंद। नहीं नहीं मैम, बातें करनी इज नॉट गॉसिपिंग। गॉसिपिंग इज किसी के पीछे उसकी बातें करनी, दैट इज चुगलिया करनी। ओके, देन नेक्स्ट इज businesses. Okay, walk and talk meetings, organizing charity walks, setting up team walking challenges and rewarding employees on reaching steps or milestones. तो मेरा नेफ्यू बाहर है, ही इज वर्किंग इन अ बिग कंपनी इन कैलिफोर्निया। वहाँ पे उसकी कंपनी ने उनके डेली अगर किसी के एम्प्लॉय के इतने स्टेप्स हो जाते हैं उनको अवार्ड्स मिलते हैं उसके। ओके, तो वो क्या करता है कि ही डजंट यूज द लिफ्ट कभी भी, तो वो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स उसकी वो काउंट हो जाती हैं। एंड ही वाज सेंट टू इंडिया फॉर अ बिजनेस मीटिंग, और यहाँ आके उसने अपने वहाँ बोला कि आई वॉक, आई डोंट वांट टू गो। दूसरा जो दूसरे विंग में जाना है, कारें निकाल रहे थे, कहते नो 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 आई वॉक। तो एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट वाज जस्ट अ 2-day मीटिंग, ही हैड टू कवर एवरीथिंग। इट वाज अबाउट 10 किलोमीटर्स और 15 किलोमीटर्स वॉक होगी उसकी मीटिंग के दौरान ही, गोइंग फ्रॉम वन टू अदर साइड। So he was telling कि यहाँ पे लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि ये कार पे नहीं जा रहा। And once that my nephew was quite healthy and he shed off so much, and आज तक वो ये बात 25 साल पुरानी है, he is not gained. He is so conscious about his health, which should be there in everyone these days, because पूरा lifestyle sedentary है। IT जॉब वाले तो पूरा sedentary work करते हैं, तो जहां मौका मिले वहां चल के बात करो, ठीक है। सो वॉक, ये सॉल्यूशंस हैं, these are the solutions. So I hope this is clear now, this essay and problem solution essay. In conclusion, there are many reasons why people are not walking enough, but certain steps can be taken to motivate them to walk more. तो problem solution essay आज हमारे कितने 3 हो गए अभी तक के 2 हैं? मैम 2 हुए। 2 हुए। Okay. Some people think healthcare should be free for everyone. Others think people should pay for their medical costs. Discuss both sides. ठीक है, ये discuss ऐसे है. Some people think government should pay for healthcare and education. इसमें education साथ में डाल दिया. Other people say it is individual's responsibility. Discuss both sides. Discuss. Okay. Next is, some people say public funds should be spent on promoting healthy living than on treatment of people. Do you agree or disagree? ये एग्री डिसएग्री है, इसको भी मैं आज के लिए स्किप कर रही हूँ. Nowadays people are consuming more and more sugar based drinks. Why do they do so? Suggest measures to solve the problem. We have come across another problem solution. Okay, so we'll have this go into this essay, and I think that will be today's class. But आपको डिस्कस ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे जो है वो, अब आपको सेटिस्फेक्शन है अपने मन में कि अब हम कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes. Okay. The essay topic is people are consuming more and more sugar based drinks. The sugar based drinks लोग consume कर रहे हैं, उसके reasons मांगे हैं, solutions मांगे हैं. तो क्या तीन में से कौन सी 2 चीजें मांगी है? Reasons and solutions. कौन सी चीज नहीं मांगी? Effects. Okay. Sugar-based drinks have become increasingly popular in the last few decades, and this has led to many health-related problems like diabetes and obesity. There are many reasons why the consumption of such drinks has increased, and steps have to be taken to ameliorate this problem. Ameliorate is ठीक करना प्रॉब्लम को,
ये हो गए 2 सेंटेंस की इंट्रो, 7 और 7 बैंड प्लस की इंट्रो है. इज दैट क्लियर? 2 सेंटेंस इंट्रो एंड थीसिस स्टेटमेंट बता रहा है कि मैं रीजंस बताऊंगी और सॉल्यूशंस. ठीक है. There are a number of reasons for the popularity of such sugar-based drinks. Of such क्यों डाला है मैंने? Of sugar-based drinks. बहुत number of reasons हैं sugar-based drinks की popularity के. The main reason is the aggressive advertising of such products on TV and social media platforms. तो सबसे पहला reason क्या है? Advertisements. बहुत advertisements आती है ना, ये दिल मांगे मोर, पेप्सी, और ऐसी कलरफुल एड्स देते हैं. और वो कौन सी है हीरोइन हमारी, वो क्रिकेटर की वाइफ नहीं, ये क्रिकेटर की नहीं वाइफ, ये इसकी फिल्म एक्टर की है वाइफ, दीपिका पादुकोण. वो कौन सी एड में है? कौन सी एड में है वो? कोका कोला की. अब ये यस मैम. तो ये एड्स देते हैं तो फिर बच्चों को लगता है, यंग पीपल को लगता है इट्स ग्लैमरस टू ड्रिंक सच, वो इसलिए भी पीते हैं. इतनी एड्स हैं. These ads target children and teenagers as they are easily swayed, especially when people see famous celebrities endorsing those drinks. They do not think twice before consuming such drinks. Another reason is that these sugar-laden drinks and sodas are cheaper than healthier options like fresh fruit juices, milk, and bottled water. अब reasons क्या है? सबसे पहला reason aggressive advertising. Second, celebrities. So young people think it is glamorous to drink them. Third, cheaper than healthier options. ठीक है? ये 3 points reason. In addition का क्या मतलब है? और reasons आने वाले हैं. These drinks also complement the fatty, spicy fast foods very well and are more appealing than plain tasteless water. अब आप बर्गर ऑर्डर करो तो बर्गर के साथ आप पानी सिंपल या चाय ऑर्डर करते हो कि पेप्सी या कोक ऑर्डर करते हो? कोक. क्योंकि वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है. और ये कॉम्प्लीमेंट के स्पेलिंग्स देख लो, COMPLEMENT. कॉम्प्लीमेंट किसी चीज का पूरक होता है, वो इन चीजों के साथ वही वाली ड्रिंक्स जाती हैं. Finally, sugar is very habit forming and some drinks contain caffeine that further increases their craving. और sugar habit forming होती है और कुछ drinks में caffeine होती है और उससे craving और बढ़ती है. People with overwhelming work schedules often skip meals. जिनके work schedules बहुत ज्यादा overwhelming है, वो meals को भी skip करते हैं and instead drive their energy from these conveniently available addictive drinks. Reasons के 2 पैरे समझ आ गए? Steps need to be taken to stop the excessive consumption of sugar-based drinks. Firstly, parents need to be good role models and change their grocery habits. Parents को अच्छे role models बनना है, अपनी grocery habits को change करना है. For example, they can swap sodas with processed ready-made juices with healthier drinks like coconut water. Children mimic their parents, and if they are guided right, they tend to make healthy choices even when they are not at home. Secondly, the government can help by imposing more taxes on such drinks so that people are discouraged from buying them. मेरी बेटी है ना, घर में कभी नहीं लाती है पेप्सी को, कभी नहीं आता घर में. जब यहाँ भी छुट्टी आती है तो स्ट्रिक्टली मना है कि ऐसी ड्रिंक्स घर में होनी नहीं चाहिए. बच्चे मांगेंगे, जिद करेंगे और पिएंगे, उनको पिलानी नहीं है उसको. ठीक है? ये पेरेंट्स को करना है. पेरेंट्स को अच्छे रोल मॉडल्स बनना है और उनको अपनी ग्रोसरी हैबिट्स, बाइंग हैबिट्स चेंज करनी है. उनको ऐसी चीजें नहीं खरीद के घर में लानी. ठीक है? और दूसरा है कि गवर्नमेंट इन पे टैक्सेस लगा सकती है. To sum up, there are several reasons why the sugary drinks have gained popularity among the people. However, many steps can be taken to mitigate the health problems that have arisen due to the regular consumption of these drinks. ठीक है? ये ऐसे समझ आ गया? Ma'am, एक question था, like if we know some real life examples that डाल सकते हैं. हाँ. Okay. I would, if I were to write it in the exam, मैं लिख दूंगी that my cousin. मैं अपनी बेटी का एग्जाम्पल नहीं दूँ, मेरी एज पे पेपर देने कम ही लोग जाते होंगे, पर एग्जाम्पल ऐसे डाल सकते हो कि my elder sister
sister never brings these drinks at home because if they will have them, the children will also have them. So her children don't choose them. Yes, you can put personal examples. Like, अभी जो real life- बैठा है, हाँ? जो like latest में real life examples भी होते हैं, like some like celebrities advertise them, but like celebrities like Cristiano Ronaldo, he literally publicly उसने like oppose किया about soda drinks and all these things. Yes, So, you can like, say celebrities Okay. का भी role है. So आप solutions में डालो ना, celebrities can Okay. come forward. तो आप उसका Okay. example डाल दो. Okay, sure. Okay. हाँ? उसने अपोज करा कि मुझे ये ड्रिंक की ऐड नहीं करनी है ना, ये करा ना उसने, पैसों के लिए ऐड करते Yes. हैं, दिस इज वेरी बैड. Okay, okay. Yes, ma'am. Yeah, that you can Okay. say. Yeah, celebrities Thank can come forward, media can come forward. ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ऐसे examples डाल सकते हैं. So this is today's class. I hope you enjoyed the class. And the aim was today's class कि आपको problem solution ऐसे हो जाए आपका. And हो गया? Yes, ma'am. 5-6 बच्चे तो बोलो yes हाँ. एक ही ऐसा आ रही है. Yes, ma'am. Okay, Yes, okay. ma'am. चलो ओके. और जिनका आज Yes. फर्स्ट डे था उनको लगा कि फर्स्ट डे है तो समझ नहीं आया, अगर No, ma'am. No, ऐसा ma'am. कुछ हुआ, No, ma'am. कुछ No, नहीं हुआ ma'am. ना ऐसा. नहीं. रोटेशन में सब कुछ कवर होएगा. एवरी डे इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, एवरी डे इज डे 1. Yes, Okay? ma'am. Every Yes, day is day 1. For all the students जिन्होंने हफ्ता पहले ज्वाइन करा, प्रॉब्लम सोल्यूशन था, उनका भी आज ही हुआ है. सही है ना? तो आज ये Yes, ऐसा ma'am. हाँ, और अगले हफ्ते कोई और हम ऐसे हैंडल करेंगे और ऐसे ही मेन टॉपिक्स में से ले लेंगे. आपके टॉपिक्स भी होते जाएंगे साथ साथ. आज फूड हो गया, थोड़ा बहुत हेल्थ हो गया, ठीक है, और बाकी मैं ये शेयर कर दूंगी थोड़े ऐसे, गो थ्रू देम एंड सैटरडे के मॉक टेस्ट में अच्छा अटेम्प्ट करना. ठीक है, प्रॉब्लम Yes. सॉल्यूशन ऐसे डालूंगी, किसी भी टॉपिक में से डालूंगी. ठीक है. Ma'am, just another question. ये actually I'm going through this. This looks like academic का है, so it will be safe for GT also. देखो ऐसे टाइप सेम आते हैं जीटी में, और ये जो कॉमन टॉपिक्स है हेल्थ वाले, हाँ उनको ये जीएम फूड्स वगैरह नहीं आएगा जीटी को. Okay. वो थोड़े टेक्निकल है टॉपिक्स, पर बाकी ये जो शुगर बेस्ड ड्रिंक्स का ऐसे आ सकता है. ओके, ये आ Yes, सकता है ma'am. उनको भी. गवर्नमेंट हेल्थ पे स्पेंड करे कि किस पे स्पेंड करे, ये भी उनको आ सकता है Okay. जीटी को. तो जीटी के जो पास्ट एसेस है ना, उसको मैंने कंपाइल करा है एक बुक में. यू मस्ट परचेज दैट बुक अवनी, दैट बुक इज अ मस्ट बाय. उसमें ऑल द पास्ट जीटी एसेस एंड लेटर्स हैं. Okay. गो थ्रू देम बिकॉज़ 90% उनमें से ही आ रहे हैं. Okay. ठीक है. Sure. हाँ. Yes, ma'am. और बाकी ये वाले जो मेरा डिस्कस करने का मतलब है, हैंडल करने का मेथड तो बिल्कुल सेम Yes, है sure, ना. ma'am. ये Yes, तो ma'am. आपको Yeah. समझ आ गया. आपको जीटी का Yes, कोई ma'am. भी आए, बिल्कुल यही मेथड पे हैंडल करना है. Nothing. Yes, ma'am. Yes, I got it, ma'am. Yes, thank you very much. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye.